Good evening, class. In last video, we have discussed the classification of vertebrates and non-vertebrates. After the classification of vertebrates, we have seen vertebrates are further divided into two subgroups. Okay, and one of the groups containing jaw, and second group which is present mouth but not containing jaw. And after that, we have discussed how the some of the groups which containing jaws and mouth is a proper manner is further divided into five types, and it is divided into five types, but there is a mostly two types of groups. The first one is superclass and second is subgroups. Okay, so in superclass we have studied in last video the Pisces group, it means the fishes. Okay, and next we have discussed the four most important groups, and which is considered as tetrapods organisms. Why? What is the meaning of tetrapods? In last video I told you that the meaning of tetrapod, tetra means four and pods means फूड. ठीक है, जिनके चार पैर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड टेट्रापोड. मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट ऑफ द जो हमारे मैमल्स में और बहुत सारी चीजें जो आते हैं वो जनरली कॉल्ड एज टेट्रापोड्स. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग जनरली वी डोंट हैव tetrapod, but we have two food as a locomotion, and some of organism has four types of food, but they also considered as a mammals group. ठीक है, so two of their फोर लिम्स एंड टू ऑफ देयर हैंड लिम्स. ठीक है, उनमें दो फोर लिम्स होते हैं, दो हैंड लिम्स होते हैं, और जो चारों का मदद जो है उनके लिए लोकोमोशन का होता है. ठीक है, सो बिफोर द एंसेस्टर ऑफ अवर ह्यूमन बीइंग्स जनरली दे यूज्ड टू क्रॉल बाय फोर टाइप्स ऑफ four limbs and two limbs. That's why they considered as tetrapods. Okay, so here we are going to discuss the basic part of any groups of phylum. Actually today we are going to complete the our animal kingdom, and this is the very important, and we will discuss all the five phylum and five subgroups of that animal kingdom in this video. Okay, so first we are going to start. The first group is सुपर क्लास में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको देखना है पाइसेस के बारे में. जनरली पाइसेस वर्ड इज अ केम फ्रॉम द ग्रीक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है पाइसेस, एंड पाइसेस मतलब फिशेस. मोस्टली इट कैरीज लॉट्स ऑफ फिशेस ऑफ देयर कम्युनिटी. जितने भी फिशेस हैं उनकी कम्युनिटी है उनको कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड पाइसेस. एंड मोस्टली अगर हम बात करते हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ पाइसेस, अगर कैरेक्टर्स की बात करते हैं द फर्स्ट वन इज ऑल हैव एक्वेटिक मोड ऑफ लिविंग. जितने भी पाइसेस होते हैं दे कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर, विदाउट दे कैन नॉट सर्वाइव, एंड मोस्टली देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन बॉडी. ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स दे हैव अ प्रॉपर body shape functions to lowers or reduce the friction of dragging in a fluid, and it may be air and water. So streamlined is a special type of shape which lower the or reduce the frictions between the dragging system in air, water and land also. ठीक है, after that paired or pectoral and pelvic fins are present. Mostly the fish, जो भी फिशेस होती हैं, ठीक है, उनके जो बॉडी के ऊपर ऐसे pelvic fins जो है प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, so that is called the pelvic and pectoral fins, और ये भी जो है इनके बॉडी में एक fins का काम करता है. ठीक है, so most important part after that respiration by gills. They don't have lungs and they don't behave the human beings also, but mostly they have the proper respiratory system, and that is called the gills. Gills is the प्रेजेंट इन स्लिट्स फॉर्म. इनके अंदर स्लिट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, एंड बाय दिस दे कैन टेक ऑक्सीजन इन देयर बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट most of the organisms are which is found in the aquatic, whether it is fish, whether it is snake, and whether it is many more organisms, but only that the fishes of the aquatic animals have their body covered with scales. It means there is a spine-like structures are generally outcoming from their body portions, and they are very pinpointed, and that is called the scales. इनकी जो scales है वो एक कांटे के जैसे होती है जो उनके पूरे बॉडी में स्ट्रीमलाइंड होती है. ठीक है, बॉडी शेप में हर एक जगह पे होता है, whether it is टेल की बात कर ले, पेक्टोरल फिन्स की बात कर ले, या बॉडी के किसी भी बॉडी के. ठीक है, और वो जो फिन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, व्हेनेवर वी टच द फिशेस समथिंग इट हर्ट्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फिन्स. आफ्टर द हर्ट इज टू चैम्बर्ड. इनके पास जो हर्ट होते हैं जनरली इट इज कैरिड एज अ सेगमेंटेड पोर्शन ऑफ टू, यानी टू चैम्बर्ड हर्ट होता है किसी भी फिशेस में. ठीक है,
नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फिशेस. अगर एग्जांपल की बात करते हैं, वी नो द वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस. बहुत सारे फिशेस के बारे में पता है. वी हैव स्टडीड रोहू, वी हैव स्टडीड कतला, ठीक है. इसके अलावा हमने डॉग फिश और भी बहुत सारे हमने देखा है. दिस ऑल आर कम्स इन द क्लास ऑफ पाइसेस, ठीक है. ये सब के सब पाइसेस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. ओके, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सुपर क्लास वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेट्रापोड्स. अब हमें टेट्रापोड्स के बारे में डिस्कस करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रापोड्स? सो फर्स्ट, टेट्रापोड्स में जो सबसे पहले आते हैं दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मींस दैट कैन लीव land and water also. It means they have two types of जनरली लिविंग नेचर. ये लैंड में भी रहते हैं और एक्वेटिक मोड, मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन के ऊपर भी. सो दे हैव एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग, यानी ये दोनों तरीके से रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. बॉडी इज कॉम्पैक्ट. इनकी जो बॉडी होती है वो काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है एंड मोस्टली डिवाइडेड इनटू हेड. सबसे ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, सेंटर पार्ट इज कॉल्ड ट्रंक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पोर्शन इज कंसीडर्ड एज टेल. सो the body of any amphibians is generally divided into three parts: head, trunk and tail. Most important, their body is compact, not a very simple form. After that, a skin is a very soft. इनकी जो skin होती है वो बहुत soft होती है, ठीक है. एंड नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय गिल्स. इनके अंदर जो रेस्पिरेशन की कैपेसिटी होती है, व्हेन दे born in a water they have well developed form of gills. When they came in the आफ्टर द वाटर, जब ये लैंड पे आते हैं ऑटोमेटिकली लंग्स इज ऑल्सो देयर एंड इट बिकम एक्टिवेट, ठीक है. लंग्स इनका एक्टिवेट होता है. एंड सम ऑफ दी ऑल्सो एम्फीबियंस यूज द बक्कल कैविटी फॉर द रेस्पिरेशन, क्योंकि बक्कल कैविटी में इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी पाई जाती है. मोस्टली दे आर यूनिसेक्सुअल, सिंगल सेक्सल्स आर सिंगल सेक्स, ठीक है. एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर. इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इन विट्रो होता है, ठीक है. इन विट्रो मींस एक्सटर्नल आल्सो कॉल्ड एज, एंड मोस्टली दे आर ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है. ये ओविपेरस होते हैं एंड वी हैव स्टडीड ओविपेरस, ठीक है. बहुत सारे हमने देखा है. सो हियर वी हैव टू डिस्कस. So, taking about the examples of amphibians, we know frog, toad, newts, and several types of examples are considered as amphibians. Okay, so at last we are going to discuss the Reptilia, and this is the third phylum which we are going to study. Reptilia is a word which is generally came from the Greek word, and that is called repair. Repair means होता है to creep, ठीक है. Creep means या crawling. We know that what is the meaning of crawling, जो रिंग वगैरह के चलते हैं, ठीक है. सो मोस्टली रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल होते हैं. टेरेस्ट्रियल मीन इट इज फाउंड जस्ट अबव द लैंड एंड जनरली दे आर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स, जो रेंग के चलते हैं, वेदर इट मे बी ऑन द वॉल, ठीक है, या फिर किसी पेड़ों पे या कहीं पे भी. दीज आर कॉल्ड रेप्टाइल्स. इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं. एंड मोस्टली देयर बॉडी इज डिवाइडेड इन अ हेड, ट्रंक एंड टेल. मोस्टली they are also considered as compact body organization. It means that they have well developed of compact body organization which is further divided into head. इनमें head होता है, trunk होते हैं और tail होते हैं, ठीक है. So this is the important part. After that they have well developed of respiratory system. Respiratory system में इनके पास होते हैं well developed of lungs as comparison to human beings. जैसे human beings में lungs होते हैं, so same here respiration is also there in reptiles. जितने भी reptiles होते हैं उनके पास lungs होते हैं for their respiration process, not have gills, ठीक है. अब बात करते हैं हार्ट की. सो हार्ट इज मोस्टली कैरिड एज थ्री चैम्बर्ड. जो हार्ट होते हैं वो थ्री चैम्बर्ड में होते हैं एंड दे आर कंसीडर्ड एज यूनिसेक्सुअल. इनको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं. इट मे बी फाउंड इन सिंगल सेक्स. ओके, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक, हियर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. हमने एम्फीबियंस में देखा था फर्टिलाइजेशन इज जनरली कैरिड आउट इन आउटसाइड द बॉडी, बट इन रेप्टाइल्स फर्टिलाइजेशन इज कैरिड इनसाइड द बॉडी, ठीक है. इनमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है. सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ reptiles. Reptiles में we have to discuss so many examples in previous also. Reptiles में हम lizard देखते हैं, ठीक है, crawling वाले. उसके अलावा lizard के अलावा then we have to see the snake. बहुत सारे ऐसे organisms हैं. These are comes in the class of reptiles. Next we have to discuss two important phylum, and that is the very beneficial for your 11th class and 9th class also, because most of the portions are also concerned in the 9th class. Okay. So next we have to discuss
the two remaining phylum, and the first one is apes. The apes is also considered as birds category. जितने भी birds होते हैं वो सब apes के category में belong करते हैं. And further it is also came from the Greek and Latin words. Avish का मतलब होता है bird, ठीक है. So after that we have to discuss the most important general characters of apes groups. Okay, so apes की बात करते हैं तो spindle shaped होते हैं, ठीक है. Mostly they are spindle shaped and streamlined body, and also they reduce the frictions, and it also divided into head होता है, trunk होता है, and tail होता है. Means their body is totally compact in nature, so it is divided into head, trunk और tail. Mostly ये features amphibians में भी थे, यही features इसके बाद वाले भी phylum में थे, and same features हमें apes में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है. So after that they have well developed four limbs. इनके पास four limbs होते हैं और hand limbs भी होते हैं. Mostly जो four limbs होते हैं वो modified होते हैं wings के form में, and wings we know that wings provide the help for the, ठीक है, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई हो सके. And also they have the hind limbs, and hind limbs adapted for perching, walking and swimming. शिकार करने का काम करते हैं, स्विमिंग करने का काम करते हैं और वॉकिंग करने का काम करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसका मतलब इनके पास जो फोर लिम्स होता है दैट इज टोटली मॉडिफाइड इनटू विंग्स. विंग्स का काम इनके लिए फ्लाई करने के लिए होते हैं, जैसे ये उड़ पाते हैं. सेकेंडरी मोस्ट अगर हम बात करते हैं, दे आर मोस्टली पर्चिंग एनिमल्स, शिकार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, ठीक है. सम ऑफ द बर्ड्स, सो दे हैव हिंड लिम्स इज आल्सो देयर. हिंड लिम्स भी इनके पास होता है, ठीक है. आफ्टर दैट they have two types of layers. एक एक्सोस्केलेटन सेल वॉल होती है और एक एंडोस्केलेटन सेल वॉल होती है. बट मोस्टली एक्सोस्केलेटन सेल वॉल जो होता है वो फीदर के फॉर्म में होता है. मींस दैट इज द फीदर, यानी सॉफ्ट, बहुत मुलायम होते हैं. लेकिन जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन वो एक बोनी के फॉर्म में होता है. मतलब जो बॉडी के अंदर होता है एंडोस्केलेटन, दैट इज द बोनी, यानी बोन्स से रिलेटेड होते हैं. एंड दैट इज वेरी लाइट इन वेट, बहुत ही हल्के होते हैं अगर वेट की बात करते हैं तो, ठीक है. मोस्टली वेरी लाइट इन वेट. दैट्स व्हाई एनी बर्ड्स कैन अचीव अ वेरी हाई गोल, ठीक है. एक बहुत दूर, मतलब उनका एक खुद का गोल होता है कि वो काफी ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है, फ्लाई करते करते. नेक्स्ट, हार्ट इज फोर चैम्बर्ड. उनकी जो हार्ट होती है जनरली हमने रेप्टाइल्स में देखा, इससे पहले एम्फीबियंस में वी हैव सीन टू चैम्बर्ड, थर्ड चैम्बर्ड, बट दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है. इनके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. एंड मोस्टली द नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड. इनके पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में होते हैं. एंड लास्ट, दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है. ये मोस्टली वार्म ब्लडेड होते हैं, कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन इनमें नहीं, इससे पहले वाले कुछ एक फाइलम में, बट दे आर वार्म ब्लडेड स्पीशीज, ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट द एप्स. एग्जांपल की बात करते हैं तो एप्स में पीकॉक है, स्पैरो है, पिजन है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे एप्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस सम मोर कैटेगरी ऑफ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम है ममेलिया, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ममेलियन. व्हाई? बिकॉज ममेलियन वर्ड इज आल्सो केम फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है मैमा, एंड मैमा मीन्स ब्रेस्ट, एंड ब्रेस्ट इज द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है. सो ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड बोथ आर फाउंड इन द मैमल्स. एंड मोस्टली अगर कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मोस्टली ममेलियंस आर टेरेस्ट्रियल एंड वार्म ब्लडेड. एक तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, इट मीन्स दे आर फाउंड ऑन द लैंड, एंड दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है. इनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है. एंड दे आर टेट्रापोड एनिमल्स, नॉट अबाउट द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी हैं उनकी भी बात कर रहे हैं एनिमल्स में, वो टेट्रापोड्स होते हैं. मीन्स दे हैव वेल डेवलप्ड ऑफ फोर टाइप्स ऑफ लेग, फोर लिम्स, हैंड लिम्स, जो कि दोनों का काम वो टेट्रापोड यानी चार पैरों के हिसाब से यूज करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड टेट्रापोड एनिमल्स. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट स्किन हैज हेयर्स. इनकी जो स्किन होते हैं उनके ऊपर हेयर्स यानी बाल पाए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी ममेलियन ग्रुप, ठीक है. आफ्टर दैट एक्सटर्नल ईयर. इनके जो ईयर्स होते हैं, जैसे एज एग्जांपल वी आर टेकिंग एज ह्यूमन बीइंग्स हैज ईयर, बट ईयर पोजेस द ईयर पिन्ना, ठीक है. इनके पास एक ईयर पिन्ना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और लाइट वेट के होते हैं. आफ्टर दैट इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट यू कैन राइट इट. रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ठीक है. इनके पास वेल डेवलप्ड फॉर्म में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होता है. वोकल सेक्स इज आल्सो देयर, ठीक है. वोकल सेक्स इज आल्सो देयर बट रेस्पिरेशन इज डन बाय लंग्स, ठीक है. आफ्टर दैट दे हैव हाई डेवलप्ड ब्रेन सिस्टम और मे बी कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम.
for which they can think, they can imagine, they can store lots of memory power in their brain. ठीक है, इनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है जो और फाइलम से, चार फाइलम से सबसे अलग इनको बनाती है. ठीक है. एंड लास्ट, द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. इनके जो हार्ट होते हैं वो 4 चैम्बर्ड होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल की बात करते हैं. एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स. ममेलियन में ह्यूमन बींग्स आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं जो कि टेट्रापोड्स होते हैं. ठीक है, जिस कैटल्स वगैरह भी आप ले सकते हैं. Okay, so that is enough for 7th chapter, and in next video we will discuss the next chapter. So I request you to all please mention everything in your assignment work, whatever I have given. Okay, so when it will be completed, you have to submit it. Okay, till then whatever I have taught you, you have to complete very carefully. Thank you, students.